बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کو لے کر ایک اضطرابی صورتحال اور ایک کیفیت اس سے ملک، قوم اور اس کے بسنے والے سنجیدہ طبقات جمیع اہل اسلام دوچار ہیں۔ 3 MPO سے گرفتاری یا ڈیٹینشن سے لے کر 295C کی دفعہ کے تحت مرزا جہلمی پر FIR کا اندراج اور چلان کی تیاری ہوئی۔ چلان مکمل ہو گیا۔ مختلف مراحل سے مرزا جہلمی کی درخواست ضمانت خارج ہوتی رہی۔ انویسٹیگیشن ایجنسی نے اسلامی نظریاتی کونسل، ایک آئینی ادارہ، اور پنجاب قرآن بورڈ کے اراکین سے، جو ایک اور آئینی ادارہ ہے، جو FIR کے مدرجات ہیں، ان پر رائے لی۔ خواتین و حضرات، یہ معاملہ مرزا جہلمی کی طرف سے جھوٹ، افطرا اور غلط انٹرپریٹیشن کا ہے۔ بظاہر مرزا جہلمی کی حمایت کرنے والے اینکرز نے، سوشل ایکٹیوسٹس نے اور مرزا جہلمی کی حمایت میں بات کرنے والے ان کے اسٹوڈنٹس اور وکلاء نے یہ تاثر دیا کہ مرزا جہلمی نے کسی کا کہا ہوا قول اس کو نقل کیا ہے، لیکن بنیادی طور پہ مرزا جہلمی نے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ اور افطرا باندھی، اور اسی پر انویسٹیگیشن کا رخ متعین ہو کر آئینی اداروں کی رائے کے مطابق مرزا جہلمی کو چلان کیا گیا۔ ایک مرحلہ آتا ہے جس میں ایک ایسا شخص اسلام آباد ہائی کورٹ میں مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی، ان کی عدالت میں اسلامی نظریاتی کونسل کے دائرہ کار کو چیلنج کرتا ہے، جو 1980 کی دہائی میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 295 کی شکوں اور 298 کی شکوں کے خلاف مقدمات لڑتا رہا، اور 4 دسمبر کی اپنی جو گفتگو ہے عدالت کے روبرو، اس میں یہ کہا کہ اسے خود ساختہ جلا وطنی گزارنی پڑی۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے آئین اور قوانین وہ کہیں آزادی اظہار اور آزادی رائے کے راستے میں رکاوٹ ہے، جو در حقیقت تمام انسانی قدروں، اخلاقی قدروں، بین الاقوامی مذاہب، آسمانی مذاہب اور دین اسلام کے عین مطابق اور دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشنز، آئین اور قوانین کے تقابل کے باوجود ایک صحیح رستہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر مقدسات کی توہین کی روک تھام کے لیے بنائے گئے قوانین ہیں، اور ان کے نفاذ کے لیے بھی انتہائی مناسب اور شفاف طریقہ اسے روبہ عمل لایا گیا ہے۔ لیکن اس کے برعکس 4 دسمبر کو جو اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے بحث سامنے آتی ہے، اس کے نتیجے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی وہ اپنی 4 دسمبر کی سماعت میں نتیجہ یہ اخذ فرماتے ہیں کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان سے رائے لی جائے
गोया हुकूमत पाकिस्तान का मौकफ लिया जाए कि इस्लामी नजराती काउंसिल का मौकफ देना और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुतालिबा पर अपनी राय देना, मिर्जा जेलमी के खिलाफ एफआईआर के कंटेंट्स पर या मजमूई तौर पर 295C के हवाले से या मजमूई तौर पर वतन अजीज में इस्लामी नजराती काउंसिल का जो किरदार, मुतय्यन किरदार है, उसके बारे में क्या है और क्या होना चाहिए, इसे लेकर भी मिर्जा जेलमी की हमायत करने वाले लोगों ने उसे और रंग में अवामुन नास के सामने पेश करने की कोशिश की। इसी तरह मारूफ कानूनदान मोहतरम राजा इमरान खलील एडवोकेट के बारे में एक मारूफ इदारे ने अपने न्यूज चैनल पे खबर नशर करते हुए राजा इमरान खलील को मिर्जा जेलमी का वकील बताया, जिसके खिलाफ यकीनन पेमरा और दीगर फोरम्स में राजा इमरान खलील एडवोकेट कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अब सूरत हाल यह है कि इस एफआईआर के अलावा बेशुमार मुल्क भर में एफआईआर हैं जो एनसीसीआईए की या दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की तरफ से मिर्जा जेलमी के खिलाफ दर्ज हैं और उन सब में मिर्जा जेलमी की गिरफ्तारी बाकी है और उन एफआईआर में मिर्जा जेलमी ने कोई जमानत नहीं ले रखी। बाई नहीं, ऐसी एफआईआर भी हैं जिनमें पीका एक्ट का इजाफा सेशन जज के लेवल की मुआज़्ज़ज़ अदालत ने कर रखा है और यूं कहिए कि एक तवील दास्तान है जिसमें उन गुस्ताखाना रवैयों को चेक एंड बैलेंस की छाननी से गुजारने की जरूरत शिद्दत पकड़ गई है। बुनियादी तौर पे मिर्जा जेलमी ने अपनी चरब जुबानी से काम लेते हुए तकाबली जायजा लेकर मुकद्दसात पर वार करना शुरू किए, हत्ता के तौहीद बारी ताला और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और निजाम रसालत पर भी अपना मशहूर तनकीदी लफ्ज शय उसका मनफी इस्तेमाल किया। अब जहां तक इंतजामी सूरत हाल का ताल्लुक है तो जराए के मुताबिक जेलम में जो जगह मिर्जा जेलमी अपने मनफी लेक्चर्स के लिए इस्तेमाल करता था, उससे किराएदारी का नाज़्म खत्म हुआ और वहां पे कोई भूसा के बंडल्स रखकर तो एक नई जेहत उस मकाम को दे दी गई है। जो बाकायदा मिर्जा जेलमी के जराए हैं उन्होंने यह अनाउंस किया है कि आज 7 तारीख इतवार को जो सेशन उसकी नाम नहाद एकेडमी के पुराने जगह पे होना था उसे मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा इतवार यानी 14 दिसंबर के सेशन के लिए नई जगह और वक्त का तायुन करके तो जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उन्हें आगाह किया जाएगा। अब जाहिर है कि ये कई जेते हैं। एक जेत ये है कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन क्या फैसला लेते हैं, होम डिपार्टमेंट पंजाब क्या फैसला लेती है और डिप्टी कमिश्नर जेहलम क्या फैसला लेते हैं और किस तरह तदारुक होता है। और इस फितने का सद्देबाब करने के लिए
इंतजामी तौर पर, कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर क्या रास्ता इख्तियार किया जाता है। हम समझते हैं कि तवातुर के साथ गुस्ताखाना मवाद का सामने आना, अदालतों में जाना और मुख्तलिफ तरीकों और हरबों से अवामुन्नास में एक मखसूस लॉबिंग का अंदाज अपनाया जाना, ये दरअसल अवाम के जज्बात को, मुसलमान की अकीदत को और कलमा गोयाने इस्लाम उनकी अकीदत को आजमाने का और मनफी तरीका पर आजमाने का एक तरीकाकार, गैर जरूरी तौर पर ही सही और गैर इरादी तौर पर ही सही, लेकिन किसी न किसी तरफ से वो मनसा शहूद पे आ रहा है। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बड़ी मजे की बात है, ये बड़ी तायीद और तारीफ की बात है कि मिर्जा जेलमी के मनफी अंदाज़े गुफ्तगू से मुतासरा अहले इस्लाम ने पूरे अदब एहतराम के साथ कानून का, इंतजाम का, इंसराम का और आइन का रास्ता देखा है। और यकीनन ये फितना और इसके सद्देबाब के लिए जो इंतजामी तरीकाकार है और जिन FIRs में और दफात में अभी तक मिर्जा जेलमी गिरफ्तारी बाकी है, और ये तासुर पैदा किया जाना उनके वकला की तरफ से कि हालिया गिरफ्तारी जो 295C में थी, उसमें हाई कोर्ट से 3 दिसंबर को जमानत का मंजूर होना, उसके बारे में ये समझना और ये फैलाने की कोशिश करना कि जमानत पे आ जाने से वो बरी जिम्मा हो गए। दर हकीकत इसका ट्रायल होना है और इस समाअत के दौरान वो तफसीलात सामने आनी है जो चालान के जरिया NCCIK ने मजाज अदालत के सामने पेश कर दी हुई है। और मुतल्लका जो फोरम है चालान पास कर कर अदालत के सामने पेश करने का, उसका मरहला भी मुकम्मल होने को है। और आने वाला जो वक्त है अगला हफ्ता, उसके दौरान बहुत सी बातें उभर कर सामने आएंगी। अहले इस्लाम की दिलचस्पी इस बात में है कि वतन अजीज में हर तरह की अफरातो तफरीत और लड़ाई झगड़े की कोशिश और फितना और फसाद को फैलाने की कोशिश का किस तरह सद्देबाब किया जा सकता है। इंशाअल्लाह उल अजीज अच्छी इत्तलात, अच्छी खबरों के साथ आपके खिदमत में गुजारिश करते रहेंगे। फिल वक्त इतनी ही बात के लिए इजाजत दीजिए। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन्नूर काउंसिल, कौसार।